First of all, I would like to welcome all of you on behalf of Ahmedabad Management Association for today's talk on Ikigai by our distinguished speakers, Dr. Himanshu Booth sir. Dr. Booth holds a doctorate in metaphysical science and he is an international motivational speaker, corporate trainer, senior business coach, sales coach, humorist, stage actor, counselor, the Zen coach, and many more things. Dr. Booth has more than 20 years of experience in sales and marketing, 28 years of experience in corporate training. And Dr. Butch is going to take many workshops at our newly inaugurated that Zen Kaizen at AMA. And he's going to take workshops on Zen in everyday life, then Kaizen in everyday life, and then corporate Buddhahood and many other workshops. So with that, I would like to hand over to Dr. Booth sir, and you will enjoy today's talk. Thank you. Thank you very much, Mukund sir. So nice of you to introduce me. Great. So, yes, Ikigai. Ikigai is a Japanese word. And you go on writing down, because this is only 60 minutes. And in 60 minutes, we have to take the keys to stay for 110 or 125 or 150 years. So you go on writing down because it's a hardcore training from the Japanese book. The first thing is, what is the meaning of Ikigai? Ikigai is remaining active throughout the life. Remaining active throughout the life. Not getting retired. ये थोड़ा परेशान करने वाला सेंटेंस है, क्योंकि हमारे यहाँ तो 58 इयर्स पर तो शटर डाउन हो जाता है कि अभी कुछ नहीं करने का है. एक्सेप्शनल केस है, प्रदीप सर है और बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स जो है वो नहीं रिटायर नहीं होते हैं. इवन एट द एज ऑफ 75-80 दे आर यंग. बट दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड इकिगाई का दूसरा मीनिंग है, what is the purpose that I'm getting up early in the morning? बहुत लोगों का पर्पस नहीं है, so they don't know whether to get up or not. उठे या ना उठे. So ये एक इकिगाई का एक बहुत ही सुंदर डेफिनेशन है. So और तीसरा जो है, staying younger when you are getting older. I like this sentence very much. Staying younger when you are getting older. यानी कि जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हम यंगर और यंगर होने चाहिए, मन से, दिमाग से, शरीर से. और उनके लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही है. वो बात ये कही है कि जब आपका जन्मदिन हो जाता है, when you are celebrating your birthday, और this पार्टी हो गई, खाना खाया, सब लोगों ने आपको विश किया, लेकिन दूसरे दिन से 364 डेज तक आर यू गेटिंग रेडी टू रिमेन फिट फॉर द नेक्स्ट बर्थडे? दूसरे जन्मदिन के लिए क्या हम तैयारी करते हैं? हम सोच रहे थे अभी हमारा जन्मदिन अगले साल आएगा. सो वी गो इनटू द कैजुअल कंफर्ट जोन. और ये कंफर्ट जोन जो है वही इकिगाई के खिलाफ है. 360 डिग्री रिवर्स. इंडियन एटीट्यूड. छुट्टी के दिन कुछ नहीं करना. सैटरडे से ही मालूम है कल छुट्टी है. कुछ लोग छुट्टी के दिन नहाते भी नहीं है. कुछ लोग छुट्टी के दिन ही नहाते. सो देयर आर वेरियस हॉबीज, वेरियस हैबिट्स. दूसरी एक चीज है, what you love, you do what you love. जो आपको पसंद है वही करो. दुनिया को क्या चाहिए, और what you are paid for. आप पैसे जो कमाते हैं, आपकी टैलेंट्स और स्किल्स के पैसे, उसको शार्पन करो. That is also meaning of Ikigai. And दूसरा है
that whenever you are thinking, when you are early in the morning, the first thing that we must do is, जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न स्टाइल में कहते हैं, लेकिन इकिगाई में बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड किया है, इट इज डिजायर एंड क्यूरियोसिटी टू लर्न. डिजायर एंड क्यूरियोसिटी टू लर्न. क्या मैं सीखता हूं? और अगर समझ लो कि मैं नहीं सीखता हूं, तो आई एम ब्लॉकिंग माई लाइफ. दिमाग को हमने ब्लॉक कर दिया. और दूसरी चीज है फिजिकल. एम आई डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो इकिगाई में ये दो चीज पर बहुत ही अहमियत दी गई है. सो आप इसको कन्वर्ट करके ये लिख सकते हैं कि मेंटल फिटनेस प्लान एंड फिजिकल फिटनेस प्लान. ये वेस्टर्न कल्चर का ये है, बट आई लाइक दिस टर्मिनोलॉजी. मेंटल फिटनेस प्लान, फिजिकल फिटनेस प्लान. लेकिन उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा. इफ आई वांट टू स्टे 100 years, if I want to stay 110 years on this planet with your family, with your children, with your brother and sister, with your colleagues, with your friends, तो इकिगाई ने कुछ सक्सेस कीज दी है. So desire and curiosity to learn and exercising daily. तीसरा इकिगाई ने जो थोड़ा सा स्ट्रेस दिया है वो है डाइट प्लान. योर डाइट प्लान, आपकी खाने की जो हैबिट्स है, डाइट प्लान तो बहुत जरूरी है. सो जंक फूड को अवॉइड करो. जंक फूड को अवॉइड करो. रिप्लेस इट विथ फ्रूट्स. हमारे यहाँ जैन शास्त्र में तो है, इसको कहते हैं उणोदरी. उणोदरी यानी कि थोड़े भूखे रहो. लेकिन इकिगाई में कहा है ओनली फिल योर स्टमक 80%, 20% एम्प्टी रखो. 20% आपका पेट खाली रखो, 80% ही भरो. जैन शास्त्र में इसको बोलते हैं उणोदरी. लेकिन हम जैन शास्त्र को नहीं समझते हैं. हम ये जब इकिगाई को पढ़ते हैं तो हमको लगता है यस, दिस इज राइट, जापानीज टेक्निक इज राइट, बट वी विल नॉट फॉलो द इंडियन स्पिरिचुअल विजडम. सो 80% ही आपका स्टमक फिलअप करो, 20% एम्प्टी. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना. If you want to stay more than 100 years, you should eat only and only 10 grams of salt daily. Only 10 grams of salt daily. 10 ग्राम જ. આપણે તો આખો ડબ્બો ઠલવી નાખીએ कि भाई ये मोड़ू है, ये थोड़ा मजा नहीं आ रहा है. Now I will give you one important philosophy. जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हर एक टेबल पर वो नमक का डब्बी है, पीपर का डब्बी है, मरी का. ये क्यों है मालूम है? ये क्यों है मालूम है? ये जापानीज ने सिखाया. अब ध्यान से सुनना. वर्ल्ड ओवर रेस्टोरेंट में नमक और पेपर का जो डब्बी रखा वो जापानीज ने पूरे वर्ल्ड को सिखाया. जापानीज फूड इज विदाउट सॉल्ट, जापानीज फूड इज विदाउट ऑयल, जापानीज फूड इज विदाउट एनी मसाला. सिर्फ बॉइल्ड आता है. एंड देन वो सॉल्ट और पेपर रखा हुआ है, उसमें थोड़ा सा
थोड़ा सा उसके ऊपर डालते हैं and then they eat. So the custom of keeping, the habit of keeping salt and pepper in the dabbi on the table has been started by Japanese. और हम तो डाइनिंग टेबल पर भी सॉल्ट पेपर वो वगैरह बर्ची सब रख ही देते हैं. हमारा तो खाना मसालेदार ही होता है, उसके ऊपर से हम सॉल्ट लेते हैं. So can you imagine the amount of salt the body is consuming? जितना नमक हम लोग खाते हैं, ब्रेन और बॉडी को नुकसान कितना होता है. सो इकिगाई में ऐसा कहा गया है 10 grams of salt only. दूसरी बात, जब आप 3 माले की बिल्डिंग में जाते हैं, डोंट यूज एलिवेटर, लिफ्ट में ना जाए, सीढ़ी चढ़कर जाए, वॉक टू योर वर्क, चलकर जाए. हम तो दही लेने के लिए भी स्कूटर पर जाते हैं. 100 ग्राम दही लेने के लिए स्कूटर पर जाते हैं. 100 रुपए का पेट्रोल धुमाड़ो कर रहा है. सो हम लोग उड़ा डालते हैं कि दही लेने के लिए जाते हो, स्कूटर पर जाते हैं. कुछ लोग तो कार में जाते हैं. 100 ग्राम दही होंडा एकॉर्ड निकालते हैं. नहीं, आप लोगों की बात नहीं है, दूसरे लोगों की बात है. देखिए, मैं जहां पर भी जाता हूँ दूसरे लोगों की बात करता हूँ. सो आप ये बुरा नहीं मानना, कल मैं दूसरी जगह पर रहूंगा तो आप समझ लेना मैं किसकी बात कर रहा हूँ. सो कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग सीरियस हो रहे हैं. ये साला एक तो इकिगाई पढ़ा रहा है, बाकी हमको कुछ फायरिंग दे रहा है. नो, ऐसा ही है. सो माय डियर फ्रेंड्स, we have to be very careful. Walk to your work. Don't use elevator. हाँ, अगर 10वीं मंजिल पर है तो मैं समझ सकता हूँ कि आप जाएं, लेकिन 5वीं मंजिल पर उतरकर 5 स्टोरी चढ़ सकते हैं. देखिए, ये जो अजीम प्रेम जी है, अजीम प्रेम जी विप्रो के चेयरमैन, 12 माले की उसकी बिल्डिंग है और वो ही सिटिंग ऑन द 12th फ्लोर. ध्यान से सुनना, आज से करीबन 18-19 साल पहले वो एएमए में आए थे, तो उन्होंने कहा था, अजीम प्रेम जी सर ने, कि मैं 12 मंजिल चढ़कर जाता हूँ. ये तो 18 साल पहले की बात है. मैं ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ? ही इज अ चेयरमैन, उसके लिए सेपरेट लिफ्ट भी हो सकती है. लेकिन ये 18-19 साल पहले अजीम सर, he was climbing the staircase. So 3-4 माले की बिल्डिंग है तो यू कैन क्लाइम. यंगस्टर्स जो है, अभी कमल राणा जो मैं देख रहा हूँ, दर्शन भाई देख रहा हूँ, पराग सर देख रहा हूँ, मिनेश सर देख रहा हूँ, प्रदीप सर तो ठीक है, प्रदीप सर को तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन प्रदीप सर को तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ 2 मंजिल तो वो वैसे भी वो चढ़ सकते हैं. बट आई नो प्रदीप सर बिकॉज ही इज फ्रॉम बड़ौदा, ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. लेकिन क्या है, हम लोग चढ़ते नहीं है, हम लिफ्ट का. और अगर समझ लो लिफ्ट बंद है तो उस दिन हम ऑफिस ही नहीं जाते. ये क्या है, 4 मंजिल की मिली यार, सीएल रख देंगे, 4 लिफ्ट ही बंद थी यार, क्या करें. Now, if you see Akshay Kumar, when he was in Singapore, he was shooting. 30 माले की एक होटल थी, तो शाम को 6:30 बजे जैसे शूटिंग खत्म हुआ तो अभिषेक बच्चन और वो सब, रितेश देशमुख, उन्होंने बोला कि क्या करेंगे. बोलते एक्सरसाइज करने की है. तो बोलते क्या यहाँ पर सिंगापुर में कैसे एक्सरसाइज करेंगे, कुछ है नहीं जिम बिम. अक्षय कुमार के बोलते चलो ये 30 माले की बिल्डिंग है, होटल, तो 5 बार ऊपर चढ़ते हैं, 5 बार नीचे उतरते हैं. ये दोनों अभिषेक और रितेश देशमुख टैक्सी पकड़कर भाग गए और इन लोगों ने 5 बार, अक्षय कुमार ने 5 बार 30 माले की बिल्डिंग, he climbed and came down. फिजिकल फिटनेस प्लान. मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, बहुत बार जापानीज के एग्जांपल आपको सूट नहीं होते, हमको इंडियन एग्जांपल ज्यादा पसंद है. सो और पॉजिटिव, दूसरा एक पॉइंट है,
पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, नेवर एवर थिंक नेगेटिव, ऑलवेज हैव पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड। एक बहुत जबरदस्त एक केस स्टडी दिया गया है इकिगाई में। डॉक्टर स्टीफन कोवी ने भी ये 7 हैबिट्स में ये दिया था, लेकिन इकिगाई में उसको बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। विक्टर फ्रैंकल नाम का एक आदमी थेरेपिस्ट था और ट्रेनर था, ऑथर था, और वो साइंटिस्ट भी था, साइकोलॉजिस्ट भी था। उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी जिसका नाम था लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी। अभी ये लोगोथेरेपी क्या है? लोगोथेरेपी इज अ काउंसलिंग सेशन, 1-to-1 काउंसलिंग सेशन। उन्होंने इकिगाई में उसका एग्जाम्पल क्यों दिया है? वो इसलिए दिया है कि जब उसको जर्मन कॉन्सेंट्रेशन कैंप में 1939 to 1945 6 साल विक्टर फ्रैंकल को आउटस्विट्स में जब रखा गया था, वो जर्मन कॉन्सेंट्रेशन कैंप का नाम था आउटस्विट्स, और बहुत टॉर्चरिंग किया था उसको। गैस चैम्बर में उसके पैर फैमिली को डाल दिया था, और उसकी जो स्क्रिप्ट थी, मैन्युस्क्रिप्ट, उसको जो लोगोथेरेपी की स्क्रिप्ट थी, वो कॉन्फिस्केट कर लिया जर्मन सोल्जर्स ने और उसको टेयर ऑफ कर दिया। या मैन सर्च फॉर मीनिंग, या यू आर राइट विक्टर फ्रैंकल, आई एम कमिंग टू दैट। सो उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट को कॉन्फिस्केट करके उसको टेयर कर दिया। अभी उसके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, विक्टर फ्रैंकल के पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन वो याद करता रहा कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। और 6 साल में जहां पर भी सिगरेट का कोई बॉक्स, कोई पेपर ऐसा पड़ा था, तो वो पेंसिल से वो एक शब्द लिखता था। और 6 साल में उन्होंने एक एक पॉइंट को एक्यूमुलेट करके 1945 के बाद जब जेल से रिहा हुआ, उसने फिर से वो स्क्रिप्ट लिख डाली। ध्यान से सुनना, विक्टर फ्रैंकल was able to stay in the German concentration camp because he had a purpose of life. He had a mission of life. And उनका एक beautiful sentence है, वो लिख लेना। We have got power to choose our response. ये capital letters में लिखना। We have got power to choose our response. हमारे पास एक ही पावर है, पावर टू चूज माई रिस्पॉन्स। लेकिन मैं उस पावर को यूटिलाइज करता हूं मेंटली, फिजिकली, डू आई यूज दैट? सो इकिगाई में स्ट्रांगली, जैसे मैंने आपको बताया, डू यू हैव अ पर्पस, डू यू हैव एम, डू यू हैव अ गोल ऑफ लाइफ? मैं बहुत सारे लोगों को पूछता हूं कि आप जिंदा क्यों है, पृथ्वी के ऊपर जिंदा क्यों है? तो जवाब मिलता है, मैं मर नहीं रहा हूं इसलिए। So that is a simple answer they are giving, because I don't have any mission. How can you stay 100 years on the planet if you don't have any mission, if you don't have any vision? Vision is where you want to go, mission is how you want to go. Vision is where you want to go, mission is how you want to go, and passion is energy to go, जिसको शाहरुख खान कहते हैं शिद्दत। शिद्दत, पैशन टू गो। लेकिन ये जो चीज है, ये जो चीज है, विजन, यस आई विल रिपीट, सौम्य भाई, आई विल रिपीट, विजन इज वेयर यू वांट टू गो,
Vision is where you want to go. Mission is how you want to go. And passion is energy to go there. ऊर्जा, शक्ति, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ શક્તિ. આળસ નહીં, લેઝી પડું નહીં. નો આળસ. Vision, mission and passion. तो लोगोथेरेपी विक्टर फ्रैंकल का एग्जाम्पल दिया है. अच्छा, मेंटल स्ट्रेस जो है उसको कैसे निकालें, इसका नाम दिया है मोरिटा थेरेपी. राइट डाउन, MORITA, मोरिटा थेरेपी. इकिगाई में ये थेरेपी का नाम है मोरिटा थेरेपी. नाउ व्हाट इज मोरिटा थेरेपी? Morita therapy is letting go of the negative things in your mind. जैसे हम बोलते हैं forget and forgive. Forget and forgive. जैसे हम जैन शास्त्र में कहते हैं, जैसे जैन शास्त्र, थैंक यू, जैसे जैन शास्त्र में कहते हैं मिच्छामि दुक्कडम. लेकिन वो मिच्छामि दुक्कडम जो कहते हैं वो कुछ भी Morita therapy, yeah. So anything that we do, क्या उसको हम let go कर सकते हैं? Am I able to let go the things, which is very bad? हम यहाँ पर subconscious mind में इकट्ठा करके रखते हैं. So your mind is overstressed. Now when the mind is overstressed, there are so many reflections within your body. So how can you stay 100 years? एम्प्लॉय बोलता है 7 साल पहले मेरे बॉस ने मेरे जो फायरिंग दिया था, 7 साल पहले दोपहर में 3 बजे फायरिंग दिया था, मैं भूला नहीं हूं. अभी इसको 7 साल पहले की फायरिंग याद करके करना क्या है? और कृष्ण भगवान आकर पूछेंगे उसको कि तेरे जीने का मकसद क्या है? बोलते इस बॉस को सीधा करना. अच्छा, बॉस को तो मालूम ही नहीं है ये मेरे लिए जिंदा है. What we are doing here? Why we are not able to forget the small things? मोरिटा थेरेपी. एक पोल है, पोल, उसके ऊपर एक डोंकी को रस्सी से बांधा है. अभी डोंकी जाने लगा लेकिन रस्सी खींचती है, रस्सी पोल के साथ बंधी हुई, तो वो गोल 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 घूमता है. और जैसे घूमता है तो रस्सी पोल के साथ भी ट्विस्ट होते हैं. तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर डोंकी खड़ा रहता है, बिकॉज नाउ देयर इज नो लूज रोप. पूरी रस्सी उसको ट्विस्ट कर दी पोल के साथ. नाउ ही कैनॉट मूव, नाउ ही कैनॉट मूव. सो Morita therapy tells that if you don't let go the negative things from your mind, you are moving like a donkey with the pole and with the rope. A time will come that you will stuck up and your body will have so many diseases. Let go. Let go नकारात्मक चीजें जो हमारे माइंड में है उसको जाने दो. लेकिन ये होता नहीं है, ये होता नहीं है, पकड़ कर रखते हैं. And because of that, what happens is I am not able to stay on this planet happily, with a great smile, with energy, with enthusiasm. यही तो दिक्कत होती है. एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, ये उसमें दिया गया है. एक बुद्धिस्ट मॉन्क है. Oh, very good. You started reading this book. Great, wonderful. एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने लिखा है और ये सूत्र जो है
वो इकिगाई में भी दिया गया है, इसको इम्प्लीमेंट करना। इसको कहते हैं हेलो सॉलिट्यूड, हेलो सॉलिट्यूड। नाउ सॉलिट्यूड यानी एकांत, तन्हाई। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ऐसी बातें करते हैं। सो ये जो है, मैं सॉलिट्यूड पूरे दिन में कभी 5 मिनट या 10 मिनट इकिगाई को फॉलो करना है। If you really want to stay 100 years, have 5 minutes and 10 minutes of solitude. Solitude यानी एकांतवास, जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब न करे। Can I have that 10 minutes? No, Morita therapy is given in Ikigai only. It is one of the concept which is given in Ikigai. So Morita therapy is one of the concept in Ikigai. तो सेपरेट किताब नहीं है। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम थोड़ा सा सॉलिट्यूड में जाए। सॉलिट्यूड यानी कि मैं, सिर्फ मैं अपने साथ, तन्हाई। लेकिन वो 5 या 10 मिनट आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। यू कैन डू मेडिटेशन ऑल्सो, आंख बंद करके। There is a beautiful sentence which I would like to bring down over here in meditation by the famous spiritual guru Osho Rajneesh, that if you don't go within, you will go without. If you don't go within, you will go without. So भीतर जाना है, यात्रा भीतर करनी है. So that is meditation. So एकांत में अगर जाना है तो meditation. If you want to see the world, you have to open your eyes. But if you want to see yourself, you have to close down your eyes. If you want to see the world, you have to open your eyes. But if you want to see yourself, you have to close down your eyes. But we never close down our eyes during the day, sitting 5 minutes, 10 minutes. So we talked about Viktor Frankl. We talked about logotherapy. We talked about power to choose my response. We talked about Morita therapy. We gave the examples of donkey also. Remove all the negative thoughts. And hello, solitude. Remember this. These are the techniques. There are various techniques of Ikigai. How can I live 100 years on this planet? Now, there are certain examples, very beautiful examples. Now, they have named one meditation which is known as Naikan meditation. N-A-I-K-A-N. N-A-I-K-A-N, Naikan meditation. Now, what is this Naikan meditation? The answer is Sunnah. If you are angry, and example दिया है Ikigai में, if you are angry, and if you want to give a blow or slap to someone, आपको बहुत गुस्सा आया कि ब्लो देना है या तो एक थप्पड़ मार रही है. नाइकिन मेडिटेशन ऐसे बोलते हैं, wait for 3 days. Wait for 3 days. And after 3 days, just think of slapping somebody. That thought has already passed. Now you don't have
any anger in your mind and you don't want to slap that person, wait for 3 days. Waiting 3 days is Naikan meditation. Waiting 3 days to be angry again or to slap someone is known as Naikan meditation. छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप गौर करेंगे, हमारे शास्त्रों में ऐसा बहुत दिया गया है, but these are all Japanese techniques. But can we do it? Can we implement this? And if I can implement, I've got a long way to go. So many prescriptions are given in Ikigai. Now, if you have got why, the answer is Sunna. If you have got why of your life, then you can tolerate so many hows, H-O-W. If I have got a why in my life, then I can tolerate so many hows, H-O-W-S. पर्पस ठीक है तो बहुत सारी मुश्किलों का मैं सामना कर सकता हूं, लेकिन पर्पस ही नहीं है तो मुश्किल का क्या करना मालूम नहीं है। लेकिन जैसे विक्टर फ्रैंकल का एग्जाम्पल है, बहुत सारी मुसीबत थी, 6 साल कंसंट्रेशन कैंप है, 6 साल। कैन वी डू इट? You take the example of Nelson Mandela, Robben Island, 27 years in imprisonment. He stayed there for 27 years, but he had a why. And so he was able to tolerate John Watson, the British jailer, very, very strict, torturing him every day because he had a why. I'm fighting for my people. Another example, Veer Savarkar, Port Blair. He was there for 11 years in the imprisonment. 50 किलो तेल निकालते थे, 50 किलो तेल बैल की जगह वीर सावरकर को बांधते थे, उसको पीटते थे, एंड रात को उसको खून निकलता था पीछे से और लकड़ी के ऊपर वो सोना होता था, एंड इट वाज पेनिंग टेरिबली। 107 डिग्री का टेम्परेचर था। Nobody was there to take care of him. 11 years on Port Blair. And he was killed by the Barry, British soldier. He was killed and thrown into the sea. But why he was tolerating all this? Because he had a why, that I want to give independence to India. Can we clap for Veer Savarkar? Can we clap for him? It is not given in Ikigai. It is not given. Yes, Miraj, Sri Purush. Yes, I know. So, but आपने शू करिए, what we are doing. या younger generations को मैं request करना चाहता हूँ कि हम क्या करते हैं, ऐसे महापुरुषों का हमने कभी जीवन देखा? We are on our WhatsApp, we are on our Facebook. अच्छा, इकिगाई में बोला गया है, ध्यान से सुनना younger generation, only 20 minutes on WhatsApp and Instagram and Facebook, सभी मिलाकर 20 minutes इकिगाई कर सकते हैं? हम तो 20 मिनट छोड़कर बाकी 23 घंटे उसमें ही होते हैं, 20 ही घंटे आराम करते हैं, बाकी 23 घंटे मोबाइल के ऊपर होते हैं। ब्लू टिक मार्क 2 देखी, टेंशन, यार उसका जवाब क्यों नहीं आया, एक घंटा सो जा, वो करेगा। और हम सोचते इकिगाई हमारा इकिगाई डिफरेंट है। आई एम सॉरी, बट आपकी बात नहीं है, दूसरे लोगों की बात है, लेकिन दे आर ऑल्सो वेरी
सो आप लोग नहीं है वो, आप मैं आपका चेहरा पढ़ सकता हूँ, कैमरा में देख सकता हूँ. वेरी नाइस. सो मैं थोड़ा देख लूँ यार, गैलरी थोड़ा व्यू करे. या वेरी गुड, वेरी नाइस. सबके चेहरे हंसने चाहिए यार, बहुत सारे लोग हैं. वेरी नाइस. वो पैनल में सिर्फ 3-4 लोग ही हंसते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मैं अकेला ही हंस रहा हूँ. गुड, वेरी नाइस. गुड. अरे कैमरा तो ओपन करो ताकि फोटोग्राफ ले ले, अच्छा फोटोग्राफ आ जाए. सब लोग कैमरा ओपन तो करो. इफ यू आर इन द राइट प्लेस तो ओके. तो एक फोटोग्राफ ले ले सबका. ग्रेट. नहीं ओपन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कि तू चालू रख, हमको नहीं ओपन करने का है, एक ही का ही सुनने का है. ओके, वेरी गुड. गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस. Great, great, great. Wonderful, wonderful. Great. I'm seeing old friends. Very nice. Excellent, excellent. Are you all enjoying? Are you all enjoying the session or not? Very good. होता है ऐसा वेव करना है, ठीक है. अच्छा ऐसा वेव करे. कमल भाई कैसे, ये बंद कर. अभी इसका मतलब ये बंद कर. अभी बंद करे या चालू रखो. ओके, एनीवे. थोड़ा हंसाने का आदत है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, थम्स अप. ये नटराजन सर बोलते हैं थम्स अप. वेरी गुड, एक्सलेंट, एक्सलेंट, गुड. एक दूसरा एग्जाम्पल है स्टीव जॉब्स का. बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, ये इकिगाई में दिया गया है. डू समथिंग इन लाइफ helping your family members. That is also ikigai. Do you help your wife? Do you help your mother? Do you help your sister? Do you help your father? So the Japanese attitude is going beyond and giving the services, contributing to the society, helping the family, helping the mother, helping the wife. So Steve Jobs का एक example दिया है कि every day in the night he washes the dishes of his entire family. जब परिवार खाना खा लेते हैं, it is Steve Jobs to, you know, to clean the dishes. Even Bill Gates is doing. Steve Jobs was doing, even Bill Gates is doing. Can we do it? Now, iPhone का चेयरमैन, माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन अगर डिशेस वॉश करता है, हम रख देते हैं डिश को, चलो मदर धोएगी, सिस्टर धोएगी, वाइफ धोएगी. दिस इज नॉट इकिगाई. You be in use of somebody, giving best services to somebody. That is also Japanese ikigai. Contribution. अरे वाह, I wash my dish most time. Very good, राकेश भाई, very good. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, wonderful. अच्छा है, आपने कमेंट कर दिया, वेरी गुड. अच्छा है, करना. कुछ लोग आज करेंगे, फिर बोलते हैं आज करेंगे इकिगाई, कल से कोई भरोसा नहीं. तो कल से कोई ठिकाना नहीं, कल प्रोग्राम नहीं है, आज है इकिगाई का, तो आज कर लेंगे. कल से कोई बात न करती. So, okay. Now, flow, F-L-O-W. Another concept of ikigai, flow. और flow में दो होता है, micro flow and flow. Micro flow and flow. अच्छा, flow का मतलब क्या है? एक चित्त, focused. Whatever you are doing, be focused. Be focused. When you are eating the food, what Japanese are telling, when you are eating the food, don't talk on mobile. Don't talk on mobile. हम मोबाइल पर बात करते करते खाना खाते हैं. Mind does not remember what you are eating. एक एग्जाम्पल दिया है, ये समझ लो एक ऑमलेट, कोई आदमी ऑमलेट खा रहा है, ब्रेकफास्ट में ऑमलेट खा रहा है और मोबाइल पर बात कर रहा है. So, yeah, feel the food entering in your stomach. Very good. Yes, you are right. Feel the food. Now, वो जो ऑमलेट खा रहा है,
मोबाइल पर बात करते करते ऑमलेट खा लिया। जैसे उसका ब्रेकफास्ट खत्म होता है, तो ये ऑथर बोलते हैं कि उस आदमी को पूछना, ऑमलेट में ऑनियंस थी? ऑमलेट में डુંગળી હતી? He will not be able to tell you. He will not be able to tell you because his attention span was not on the breakfast. His attention span focused was on mobile. It's a beautiful example. It's a very beautiful example. So the thing is, the flow is very important. Micro flow. भगवत गीता में इसको कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम। योगः कर्मसु कौशलम। Convert your job into meditation. ये भगवत गीता है. So when I was reading Ikigai, and when they were talking about micro flow, Lord Krishna is already told. But do we follow that? Do we convert our job into meditation? So micro flow, जो भी कुछ काम करे एक चित्त के साथ करे, इधर उधर देखे ही नहीं. There is one incident, there is one beautiful example. Swami Vivekananda was reading one book. His disciple came, he looked from the room outside that Swamiji is reading a book, and he was not looking up. So he came inside the room and he stood just one feet away. Still Swamiji is looking in the book. After almost standing 5 minutes, the disciple told Guruji. Second time he told Guruji. Still Swami Vivekananda is not looking up. Third time he came near and just touched Swamiji. And Swamiji immediately said, yes. At that time, the disciple realized he was so engrossed in reading, he was so focused on reading, that he was not knowing that somebody else is standing just 1 feet away, half a feet away. This is micro flow. What Ikigai is telling, this is micro flow. When we are eating, just give attention on food. Feel the taste. महात्मा गांधी एक रोटी खाते थे और दूध पीते थे. ध्यान से सुनना. महात्मा गांधी एक रोटी खाते थे और बकरी का जो दूध पीते थे उसको कंप्लीट करने में उसको आधा घंटा लगता था. I am not exaggerating. There is micro flow. That is concentration. Tasting the food. Each and every nivala, each and every bite, you have to taste that food. But can we do it? It is one of the most prominent example of micro flow. They have given one example that one lady is standing near the lift, and throughout almost 10 hours, उनका काम क्या है, लेडी का काम क्या है? ग्रीटिंग्स देना, गुड मॉर्निंग बोलना, गुड आफ्टरनून बोलना. थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू. लेकिन वो लेडी जो है उसका काम क्या है? 10 घंटे सिर्फ गेस्ट को लिफ्ट में ले जाना, एलिवेटर में ले जाना, उसको ग्रीटिंग में गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोलना, और फिर केस बाउ डाउन करना. जापानीज में बाउ डाउन होता है. एलिवेटर का बटन दबाना, एलिवेटर आता है, उसमें वो बैठ जाते हैं. फिर उसको साथ जाना 7th 8th फ्लोर जहां पर उतरने का है वो खोल देते हैं. जैसे वो उतरते हैं, थैंक यू वेरी मच, फिर बाउ डाउन, और फिर थैंक यू, फिर वो नीचे आती है. ये 10 घंटे उसको यही करने का है. इकिगाई में उस ऑथर ने ऐसा कहा है, this lady was in micro flow, and throughout those 10 hours there was a smile on her face, and the first guest and the last guest after 10 hours,
there is no difference in welcoming the guest. That beautiful smile, that greeting, pressing down the button, and just waving the hand to come into the elevator. And the author has written that it feels that every guest is being served with invisible tea. जैसे उसको चाय पेश करती है, जिस तरह से हाथ को वेव करती है, जिस तरह से वो स्माइल करती है, as if every time ये गेस्ट को चाय पिलाती है. Now what a beautiful example of microflow. Can we do it? 10 घंटे हम जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, can we do it? Can we have that consistency, perseverance? Now it's very difficult. एक ही काम हम 10 घंटे से करते, 10 साल से करते हैं. बहुत बार तो हम बोल देते हैं यार बहुत कंटाळा है, ये त्रासी जो है यार, ये तो बहुत झंझट है यार, बहुत झंझट है. आज तो मैं हाफ डे जा रहा हूँ, और हाफ डे जा रहा हूँ, ये मॉर्निंग से 9:30 बजे बोल दिया, 1 बजे जा रहा है, उसके बीच में 14-15 बार बोल रहा है आज मैं हाफ डे जा रहा हूँ. हाफ डे में कुछ काम ही नहीं होता. Do we have that enthusiasm, that microflow, that inquisitiveness, that stability of mind? So they have taken this microflow and flow, and they have named this Zen. Zen in Japanese. Z-E-N. Zero engine noise. Z-E-N, zero engine noise. It's a philosophy which was started by Lord Buddha 2,500 years ago. Celebrate each day of your life. Another prescription, every day. Don't celebrate birthday, celebrate each and every day of your life. Every moment, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, हर घड़ी में क्या कर रहा हूँ, 86,400 में क्या कर रहा हूँ. Am I aware, awake, alert? Aware, awake, alert. 3A ये Zen टेक्निक है. Aware, alert and awake. मैं जागता हूँ, नहीं आंख खुली है तो जागता हूँ, नहीं भीतर से सोए हुए है. आंख खोलना इसको जागना नहीं है, भीतर से सोए हुए है. So it's the spiritual height. Am I awake from within? रिचर्ड फेनमैन का एक एग्जाम्पल दिया है माइक्रोफ्लो का. एक ऑर्गेनाइजेशन उसने ज्वाइन किया, कंप्यूटर का वो आईटी कंपनी थी, उसने ज्वाइन किया. तो रिचर्ड को पहले दिन उन्होंने पूछा कि मुझे क्या कोई काम दो. तो उन्होंने कहा कि ये सब करना है, ये सब फाइल्स. बोलते हैं ये तो सब ठीक है, दूसरा कुछ काम दो. तो उन्होंने बोला कि जाओ जाकर शॉप से कुछ सामान लेकर आओ. जैसा है कुछ फालतू काम दे दिए रिचर्ड को. वो करता रहा. जब भी वो फ्री होता था, बहुत ध्यान से सुनना, जब वो फ्री होता था तो ये ऑफिस की दीवारों को पेंट करता था. ये रिचर्ड फेनमैन ये जब भी फ्री होता था तो ऑफिस की दीवारों को पेंट करता था. वो कुछ बोलता नहीं था, जो काम सौंपते थे वो करता था, और जब फ्री होता था तब दीवार पेंट करता था. एक बार कुछ विजिटर्स आए और वो आईटी कंपनी के मालिक को कहा कि ये रिचर्ड फेनमैन जो है, आपको मालूम है ये कौन है? आपने उसको हायर किया है.
बोलते no. बोलते last month he has got a Nobel Prize. Last month he has got a Nobel Prize. और आप उसको फालतू काम दे रहे हैं. You are giving a tribal jobs. ऑफिस की दीवार पेंट कर रहा है यार, नोबेल प्राइज विनर. तभी आईटी कंपनी के चेयरमैन को उनको बहुत बुरा लगा. उन्होंने रिचर्ड फेनमैन को बोला कि वी आर वेरी सॉरी, सिंसियर एपोलॉजी. कर सकते हैं माइक्रोफ्लो. दिस एग्जाम्पल इज गिवन इन इकिगाई. इतना बड़ा आदमी, हाँ, लेकिन कभी कभी बोला नहीं. He did not complain. लेकिन क्या हम ये कर सकते हैं शांत चित्त से, माइक्रोफ्लो से हम अपना काम कर सकते हैं? अब लगता है अच्छा, ये सुनने में, ये पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है. But to implement requires, it is a Herculean task. It's not easy. It's not easy. आप ट्राई करके देखना. माइक्रोफ्लो में कल एक ट्राई करके देखना आधा घंटे. Can you do it? It's very, very difficult. Can you sit in meditation? मैंने 27 साल बोले, नेल्सन मंडेला का 27 साल प्रेजेंट का एग्जांपल दिया. आप 27 मिनट, 27 मिनट आप मेडिटेशन में बैठ कर देखो, आंख बंद करके. क्लोज डाउन ऑल द रूम्स एंड क्लोज डाउन ऑल द विंडोज एंड सिट. नो फैन, नो एसी. नो फैन, नो एसी, क्योंकि रॉबिन आइलैंड में कोई एसी और पंखा नहीं था. Now, can you sit for 27 minutes? That is microflow. That is ikigai. Have I trained my mind in any such kind of discomforts? I'm sorry. Why I'm giving you such examples? Because we have to train our mind. We have to train our mind. And if I do this regularly, then I can understand what is the meaning of ikigai. तब ये किताब पढ़ेंगे 218 पेजेस की किताब, फिर आप देखो कि इसका महत्व क्या है. आप सोचेंगे भी नहीं इसमें सूर्य नमस्कार के डायग्राम्स दिए हैं. But do we do सूर्य नमस्कार? I want to ask some of the friends over here, do we do? But we are not doing regularly. But the Japanese ikigai have told this is one of the best exercise recommended by WHO, World Health Organization, that improves the memory power, concentration, and remains fit. You can remain fit. Only one exercise, सूर्य नमस्कार. अरे सूर्य नमस्कार એટલે सूर्यને આવી તો નમસ્કાર નહીં, 12 આસનો का एक आसन, वो सूर्य नमस्कार. Yes, Miraj Patel is telling, yes, doing सूर्य नमस्कार every day. Very good, very nice, good, excellent. करो, कल से चालू करो. कल से चालू करें, देखते हैं अभी. Can you show again the book yellow? Ikigai. मैं अपना चेहरा भी ढक लेता हूं ताकि आपको दिखे अच्छी तरह. Amazon.com से मंगा लेना. करीबन 250-300 रुपए की किताब आती है. नहीं, 499 की है. अभी Amazon.com से तो शायद सस्ती होगी, पता नहीं, क्योंकि मैंने ये परचेस किया था 2020 में, और 2020 में मैंने परचेस किया था 12 जनवरी 2020. सो आप ये देख लेना. लेकिन मैं ऐसा थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों, that it is very important. Reading only is not important. Prescriptions are not only important, but implementation
ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન. અરે વાહ, જૈનિમભાઈ ને બોલા 7 ઓક્ટોબર સુધી સેલ છે, 300 રૂપિયા. અરે વેરી ગુડ. ગુજરાતીમાં છે મારી પાસે. વાહ વાહ મિનેશભાઈ, તમારા ઘરનું એડ્રેસ લખી નાખો, બધા તમારે ત્યાં આવી જશે, લાઈન લગાડશે તમારે ત્યાં. વેરી ગુડ, જબરદસ્ત. એટલે ગુડ. नाउ वी हमारी दिक्कत क्या है मालूम है? We know everything in this world, but we are very poor implementers. We are very poor implementers. सीख लेते हैं, अभी इकिगाई सीख लिया तो हम सोचते हैं एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार, लाभ पाचम थी चालू करीશું. तो भाई लाभ पाचम गई, હવે લાભ પાંચમ હવે કેટલી લાભ પાંચમ ગઈ. दिवाली के बाद शुरू करेंगे. दिवाली, वो दिवाली कभी नहीं आएगी. So, okay, hurry up, please. Please write down 10 rules of Ikigai. 10 rules of Ikigai. Number one. Stay active, don't retire. Stay active, don't retire. Number two, do everything slowly. यानी कि चलना है slowly, खाना है slowly, सीढ़ी चढ़ना है slowly, सीढ़ी उतरना है slowly. That is Zen technique. भागो मत, rushing down मत करो. It gives stress. बीपी बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है. So take it slow. Number three, don't fill the stomach. जैसे मैंने आपको बोला 80% ही भरो, 20% खाली रखो. Don't fill your stomach. Number four, get in shape for your next birthday. जैसे मैंने आपको कहा, get in shape for your next birthday. जन्मदिन खत्म हुआ, दूसरे जन्मदिन के लिए तैयारी करो. To remain fit, ज्यादा फिट रहो. हर जन्मदिन पर ज्यादा फिट रहो. पांचवा है स्माइल. सब लोग स्माइल तो करो यार, देखकर थोड़ा स्माइल तो करो. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. जो कैमरा नहीं ओपन करते हैं वो भी कर ले, आईने में देखकर करके स्माइल करो. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, स्माइल. अरे किसी का फोटोग्राफी स्माइलिंग का है, वेरी गुड, वेरी नाइस. अरे वाह. स्माइल, वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट. इट्स अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. शायद अच्छी रहती है स्माइल. कुछ लोगों के चेहरे देखना, सुबह में उठते हैं बोलते हैं जय श्री कृष्ण. शू जय श्री कृष्ण? काम कर रहा तारू. तो उसको भी लगता है कि मैंने क्यों बोला इसको. सो स्माइल. 6, रिकनेक्ट विथ नेचर. कुदरत के साथ रहो थोड़ा बहुत. ઉઠવાનો ટાઈમ મળતો નહીં, કુદરત સાથે જે રહ્યો. ઉઠવાનો તો કંટાળો છે, કુદરત સાથે ક્યાંથી રહી. So reconnect with the nature. सुबह में उठकर आसमान में देखो, पंछियों को देखो. उम्र बढ़ जाएगी. 5 मिनट देखेंगे, 10 मिनट उम्र बढ़ जाएगी. કાલથી વાત, અડધો કલાક જ ઉભો રહો, ચિંતા જ નહીં. So number 7, gratitude. Give thanks. Gratitude. Give thanks to your parents. Give thanks to Lord Krishna. Give thanks to the trees. Give thanks to the sun, the moon.
Give thanks to your family. Give thanks to your MD, chairman. Give thanks to your customers. Give thanks to your suppliers. And give thanks to your team members. And give thanks to your boss. બોસ અમને કોઈથી થેન્ક કહેતું નથી, પણ તારે કહેવાનું. એ ભલે ન કે. You have to give thanks to the boss. એ કે ન કે. You have to give thanks. Surround yourself. Point number 8, surround yourself with good friends. Surround yourself with good friends. સારા મિત્રોની સાથે રહો. Number 9, live each and every moment, LIVE. Live each and every moment. हर घड़ी, हर घड़ी. And last one, follow your ikigai. Follow your mission, follow your goal. So friends, it is sharp 7:31, 7:32, and we at AMA are very sharp on time. So sorry to take your 2 minutes more. Thank you very much, all of you, for joining me. We are coming out with the one very good program, but it will be physical in October, and the name of that program is Corporate Buddhahood. It will be conducted by me, and it will be the program for 3 hours in AMA. Thank you very much. See you next time. Have a pleasant life, and my pranams, charan sparsh to your parents, your family. Goodbye. Thank you.